आप जी दे जीवन दे अंदर हुण एक शुद्धता दा होना बहुत जरूरी आ ते तुहाडे जीवन दे अंदर एक मचोर विश्वासी बनना बहुत जरूरी आ। तुसीं एक मचोर, एक समझदार, एक मजबूत विश्वासी बनो, नहीं तो आने वाले दिनों के विच तुहाडे भी मन डोल जाणगे। आने वाले दिनों में तुसीं भी बाइबल नूं बंद कर दोगे। वैरी चाहुंदा ही आ इदां दीयां खबरां लिया के कि तुसीं जिहड़े क्रिश्चियनस आ, जिहड़े फेथफुल लोग आ, जिहड़े बिलीवर्स आ, जिन्हां ने नवां जन्म पाया आ, ਉਹ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਪਲ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ, ਮਾੜਾ ਕਿ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਡਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਆ ਬਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ।
पर ਮੈਨੂੰ नहीं पता असल सच की आ, पर जो भी आ, पर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 5 ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ 32 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। कहना मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। कहना मैं धर्मियां दे ਲਈ नहीं पर पापियां दे लिए आया कि ਉਹ ਮਨ ਫਰਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर आपने मन नहीं फिराया तो आपने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। अगर आप यहां संगति में आकर बैठते हैं, अगर आपने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, अगर आपकी लाइफ प्रेयर वाली लाइफ नहीं है, आपके मन की शुद्धता नहीं है, आपके आंखों की शुद्धता नहीं है, आपके हाथों में शुद्धता नहीं है, आप गंदा सोचते हैं, तो आप प्रभु के लोग नहीं हैं। प्रभु के लोगों के बीच बैठकर आप प्रभु के लोग नहीं बन सकते जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर रिप्लाई नहीं कर लेते। जब तक इसको आप अपने ऊपर लेते नहीं हैं, और तब तक आप यीशु मसीह के अनुयायी नहीं है। आज मुझे ये वचन देते हुए महसूस हो रहा है कि आपकी जो रूट्स हैं, आपकी मसीह में जो जड़ है, जो नींव है, उसको आपने मजबूत करना है। उस जड़ को और भी मजबूत करो, उस नींव को और भी मजबूत करो। इंसान झूठ हो सकता है, कोई प्रचारक झूठ हो सकता है, कोई नबी झूठ हो सकता है, कोई भी टाइटल झूठ हो सकता है, लेकिन एक ही टाइटल है जो झूठ नहीं हो सकता, वो है यहोवा परमेश्वर, वो है प्रभु, वो है जीसस क्राइस्ट, जिसने प्रेम का संदेश दिया, जिसने प्यार का संदेश दिया। सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा संदेश क्या है? वो पापियों को बचाने के लिए आया। लेकिन इस वचन से हम क्या सीखते हैं? इस वचन में क्या लिखा है? इस वचन में लिखा है, प्रभु पापियों से प्रेम करता है, उनको एक टाइम दिया जाता है वो पाप छोड़ने के लिए। प्रभु पाप से प्रेम नहीं करता, पापियों से प्रेम करता। इसमें समझो, इसमें अंतर है। अगर आपके जीवन में पाप है तो आपको पाप छोड़ने पड़ेंगे। प्रभु आपको पसंद करते हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आपके द्वारा किए गए अधर्म के कामों को प्रभु मोहब्बत नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। अगर आप बुलाए गए हैं, बड़ी बात है, ये आपके लिए खुशी की बात है। आपको खुश होना चाहिए। आपको प्रभु ने बुला लिया है, पूरी दुनिया से अलग किया है। अभी आपने अपने पापों को छोड़ना है। अगर आप पापों को नहीं छोड़ते और आपके मन में ये वचन शैतान ने उल्टा करके लटका दिया, आप देखते रहो प्रभु यीशु पापियों को प्रेम करते हैं, तो आप पाप करते जाओ। ऐसा कभी नहीं है, हरगिज नहीं है। ये झूठ है, ये शैतान का झूठ है और सबसे बड़ा झूठ है। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं, और अगर आप अधर्म के काम करते रहे तो वो आपको छोड़ देंगे एक दिन। सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आपको समय दिया जाता है। कुछ लोग ठीक नहीं होते, कुछ लोग मन की शांति नहीं पाते, कुछ लोग मैच्योर नहीं होते, वो बेबी क्रिश्चियन है। अभी 10 साल हो गए चर्च आते, तब भी बोतल से दूध पीने वाली बात है।
चम्मच से खाना शुरू नहीं किया। और बाइबल ऐसे बोलता है कि जब तुम बुलाए जाओ तो तब तुम सुनो आत्मा कलीसिया से क्या बात करता है। बहुत लोग इस दुनिया में आते हैं, बहुत लोग चर्च में आते हैं, वो सुनते नहीं है पादरी प्रचारण क्या कर रहा है। उसके दिमाग में एक युद्ध चल रहा है। अगर आपके दिमाग में युद्ध चल रहा है तो आप परमेश्वर के द्वारा जो वचन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, जो वचन आपको दिया जा रहा है, आप उस वचन को नहीं ले सकते। आप ले नहीं सकते उस वचन को, क्योंकि आपके मन में युद्ध चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आने वाली विपत्तियां, आने वाली जो इस धरती पे विनाश करने वाली ऐसी बीमारियां आने वाली हैं, ऐसे जो आपने अभी म्यांमार में देखा है, थाईलैंड में देखा है, चाइना में देखा है, कैसे लोग झूम रहे थे, पूरा का पूरा बिल्डिंग घिरा और सबके सब पता नहीं कहां चले गए और निकाल नहीं पाए वहां से लोगों को। इतनी भारी भारी बिल्डिंग्स, इतना स्टील उसमें डाला जाता है उसको इतनी बड़े बनाने के लिए, कहां से लोगों को निकालेंगे। ये क्या है? सब कुछ परमेश्वर का क्रोध है। धरती कांपती है जब आप गुनाह करते हो। आप, बाइबल कहता है जब भी आप पाप को देखो और भाग जाओ। मैं आज सारी कलीसिया को यह संदेश देता हूं, जहां भी आपके जीवन में कहीं पाप एंट्री करना चाहे, वो स्थान छोड़ो और भाग जाओ। अगर आप बचना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, अगर आप मसीह की किंगडम में जाना चाहते हो, मसीह से प्यार करते हो, अगर आपने मसीह की शिक्षा को प्राप्त किया है, अगर आपने ये मान लिया, आपको समझ में आ गया परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापियों से प्यार कैसे करते हैं, वो आपको एक टाइम दिया जाता है। उसी टाइम में आपको पश्चाताप करके अपने पापों को छोड़ना है और धर्मियों के वस्त्र पहनना है। बाइबल में लिखा है उसने धार्मिकता के वस्त्र हमको दिए हैं। अगर आप में से कोई भी विश्वासी, चाहे वो 10 साल से आ रहा है, 20 साल से आ रहा है, 10 दिन से आ रहा है, अगर आपने धार्मिकता के वस्त्र ना डाले तो आप मर जाएंगे, आत्मा में भी और शरीर में भी। बाइबल कहता है शरीर में सब मरेंगे लेकिन आत्मा में सब नहीं मरेंगे। अगर आप दोनों में मर गए तो फिर परमेश्वर का वचन आपने फॉलो नहीं किया। तो उसका फायदा क्या है? आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, उसको समझना है क्या कहता है। अभी आप देखिए, अपनी बाइबल निकालें, हिजकियल की आप किताब खोल सकते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में है, इसमें देखें और इसका 18, इसकी 30 में देखो क्या लिखा है प्रभु का वचन। और ये वचन इतने जबरदस्त हैं, अगर आज आप बाइबल नहीं लेके आए, किसी की कलम लेके आप लिख के लेके जाओ, अपने घर जाके बाइबल में ये पढ़ना क्या लिखा है। ये संदेश परमेश्वर की ओर से है, ना कि किसी पादरी की ओर से है, ना कि पास्टर ध्योल की ओर से है, ना कि किसी व्यक्ति की ओर से है। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। पहली बात, वो क्या कहता है? ये वचन किसका है? सब बोलिए, किसका वचन है? यहोवा का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन किसका है? सब ऊंची आवाज से बोले, यहोवा का वचन है। क्योंकि यहोवा का वचन जो है वो आपको जीवन देता है। इंसान का वचन आपको जीवन नहीं देता, यहोवा का वचन आपको जीवन देता है। और लिखा है प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने। इज़राइल के घराने कौन है भाई? जो लोग चुने जाते हैं, हम उसी को मानते हैं, वो इस्राएल के घराने। अभी इस्राएल के घराने की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इसमें काफी मुद्दा है
काफी एंगल से हम इसकी बात कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए अभी मैं यही बोलूंगा कि जो लोग चुने जाते हैं उनको हम इज़राइल के घराने का नाम देते हैं, जिनको प्रभु प्यार करते हैं। इस्राएल में सब लोग धर्मी नहीं थे, इस्राएल में भी बहुत पापी थे, गुनाहगार लोग थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा परमेश्वर ने एक जन को पकड़ा। सीधी बात नहीं की, जो लोग फंसे हुए थे उनमें से भी किसी को नहीं चुना, परमेश्वर ने मूसेस को चुना, उसको बुलाया वापस, फिरौन में आओ, राजा के सामने आओ, क्योंकि मैं वचन देता हूं, क्योंकि मैं इन लोगों को बचाना चाहता हूं, मैं इन पापियों को धार्मिकता में बदलना चाहता हूं। आज भी परमेश्वर ने आपको पापियों से उठाया है, लेकिन अगर आप अभी भी पाप में रहे तो उसका फायदा क्या है? लिखा ये वाणी यहोवा की है और इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। परमेश्वर जब न्याय करेंगे किस रीति से करेंगे? आप चर्च आकर बैठता है, चर्च आकर बात नहीं मानता, चर्च आकर वचन नहीं सुनता, घर जाके प्रार्थना नहीं करता, कभी बाइबल नहीं पढ़ता, और परमेश्वर के लिए आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, कलीसिया के लिए कोई इच्छा नहीं है। आप देखो किधर जा रहे हैं। बाइबल क्या कहता है? मैं आपका जो भी चाल चलन होगा उसी के अनुसार ही मैं एक एक व्यक्ति का न्याय करूंगा। जब परमेश्वर आपके जीवन के कामों को देखेंगे तब निर्णय उसी के हिसाब से होगा। आपको परमेश्वर से प्यार करना है। मैं सबको एक ही ये मशवरा देना चाहता हूं, आज आप सभी परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगे। आप आखिरी प्रार्थना में कहें, प्रभु अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसे मेरी जिंदगी में गुनाह है जो मुझे लगते हैं गुनाह नहीं है लेकिन तुझे गुनाह लगते हैं, मैं चाहता हूं तू मुझे क्षमा कर प्रभु, तू मुझे माफ कर प्रभु। आज का वचन थोड़ा गहराई का वचन है, थोड़ा हार्ड वचन है, तो अगर आप पूरा ध्यान देंगे तभी आपके दिमाग में इसकी पिक्चर बनेगी। सो थोड़ा केयरफुली फिर कहता है, मैं आपके कामों के और चाल चलन के अनुसार ही आपका न्याय करूंगा। दूसरी बात, पश्चाताप करो। देखो अभी मैंने बोला, और परमेश्वर क्या कहता है? पश्चाताप करो ताकि आपके द्वारा किए हुए अधर्म के कामों का फल आपको ना मिले। आपके द्वारा किए गए ऐसे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो शैतान को पसंद है, अगर आप वैसे काम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उन सभी पापों से बाहर निकालना चाहते हैं इस वचन के द्वारा। और वचन में लिखा है ये वाणी यहोवा की है, और दूसरी बात वो आपका न्याय करेगा, आपके चाल चलन के अनुसार करेगा, और तीसरी बात वो कहता है आप अपने पापों की क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। ये रसूलों के कामों में दूसरा चैप्टर, वो सारा वचन उसी में भी लिखा गया है। अपने द्वारा परमेश्वर के उस वचन को लेकर दुनिया में खड़े रहना, नमूना बनना और दिखाना कि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। आप दिखाएंगे कि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, तभी परमेश्वर आपको अपनी आशीष से ब्लेस करेगा। सभी बोले आमीन। जोर से चलाकर बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको मेरा वचन समझ में आ रहा है तो हाथ उठा के दिखाएं जरा मुझे। वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। सब भाई बहन
बूढ़े, बच्चे और बुजुर्ग, ये मैसेज आपके जीवन की प्रमोशन के लिए है। आमीन। आपके जीवन की प्रमोशन होने वाली है। अगर कुछ भी ऐसा आता है जो डाउटफुल है, उससे निकलना ही आपकी प्रमोशन है। मैं विश्वास करता हूं आप निकल चुके हैं और आपकी प्रमोशन हो रही है यीशु मसीह के नाम से। और आज संडे है, आज इबादत का दिन है, आज आपकी बरकत का दिन है, प्रभु ने ठहराया है। और कितने जन आज बरकत लेना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और वचन में क्या लिखता है? पश्चाताप करो। अच्छी बात है आप चर्च में आए हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने आपसे बपतिस्मा भी लिया हो, आप प्रार्थना भी करते हो, लेकिन कुछ ऐसे अधर्म के काम आपकी लाइफ के साथ जुड़े हैं जिससे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पश्चाताप करो।